Once again, welcome all of you. Today we go for the simulator uh, session and how to use this simulator for the campus campus in arrangement. Just one minute. Okay. So before going one video for all of you, then we go for the how to use of this software. So I will discuss one video for all of you. Write quickly and confidently so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, basically this is the real structure of LTTC server LAN server room. What is the meaning of the LAN? Meaning of the LAN is already discussed in the last session. One port of the router is known as LAN area. Okay, distance it doesn't matter. So in this case, in this diagram, and this is the lab visit regarding the how to give the internet in LTTC campus to their in hostel through Wi-Fi and through the LAN cable. ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके अंदर LTTC कैंपस में कैसे इंटरनेट दिया गया है और कैसे आपका इसका जो भी ऑफिसेज हैं उनमें किसके तरफ हम इंटरनेट दे रहे हैं, नंबर जो हॉस्टल्स हैं उनमें वाईफाई में कैसे दिया गया है, और सेम सिनारियो इज अप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवेयर इन योर कॉलेज इन योर बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग है आपके अलग है, आपके कॉलेज में भी डेफिनेटली इन योर कॉलेज गिवन इंटरनेट ऑल ऑफ यू। तो बाय वाईफाई बाय लैन केबल मोस्टली स्टूडेंट यूज बाय द वाईफाई when you join any your engineering college. So when you give username password for all of you. So how do this work internet is a specification will be displayed in this video. So I explain in English Hindi both right just now. इसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है तो हमने BSNL GMTT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे इसमें ये हमारा GMTT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे CAT6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा, लेकिन मुझे in this video first we discuss about ki if you want complete internet in your college campus, any hostel building, hotel building, any location in the campus. So in this regard, first requirement is that you go to the nearby ISP like BSNL, like Reliance, like other company who give the internet. In this case we just fill the form and demanding bandwidth by the lease line. This line is known as the lease line. Okay, so this line is a lease line, and this lease line bandwidth for your college, suppose 100 Mbps. In this case, in the LTTC Ghaziabad, already 1000 Mbps speed already we demanded, but till time in working status is the 100 Mbps. So this uh, already discussed in router study
There are three types of router. One is the main router. This is known as the core router. And second router is the provider edge, and that means ISP router. And finally, one router is the customer edge router. So here in this diagram, this is the customer edge router. Where is located? It is located in LTTC server room. And when it come from ISP like BSNL, Reliance, Tata. This is the ISP router, and come 100 Mbps speed via the optical fiber. This media is the optical fiber, and just come in the here your customer is router. And in this case, this optical fiber convert to the electrical cable, and this use LAN cable. Suppose here we use one cable, one computer, so all 100 Mbps by the single user. But what is our responsibility? Our responsibility in our college and campus, any campus, each and every user implies individually they give to internet. In this case, we don't use this directly computer. This cable is directly go to the switch room. This is the switch. So this is the router, and this is the switch. Uh, First listen, then more explain. 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी इम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी है, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, दैट इज स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ LTTC में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन LTTC के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। On behalf of you, give the internet in your college campus. So definitely operation, maintenance and monitoring is required on behalf of you. Suppose in this video, just I telling all of you that means I have through hotspot I give the internet each and every one. In this case, I am calling ISP. So ISP means it is your responsibility, authentication, authorization and accounting. What is meaning of authentication? For example, when you in your college, first time you connect through Wi-Fi, what happened? Just connect to by a password to Wi-Fi, then one extra window is open, and they tell me please put username and password. Okay, so then you each and every user student they have put username and password. Username may be as per reliability, it is the roll number, it is registration number, other possibilities depend by the name is also no problem. So this given individual user, each and every one. So this is the authentication. Here you are right person or internet user for your college campus. Second, authorization. What is the authorization? Authorization क्या होता है? In LTTC campus, I just divided user three types. One user, main user like me. I have no any bar, any open site of bar, any speed bar, any time management. Okay. But when came a student in our campus for the training purpose, so during class time like 10 a.m. to 13 p.m., I just block internet for all of them. They are not able, they are connected to the Wi-Fi, no problem. But during 10 a.m. to 13 p.m., they not able to connect internet because I blocking that time period. Number one. Number two, I have 100 Mbps speed bandwidth, but I just block to each every student only 2 Mbps. No one student allow more than 2 Mbps speed bandwidth. Okay. Third is that a lot of website not allowed to student. Okay. So such types of category divided in our
here LTTC campus student, for us just give the example, they are authorization for the this only. I am authorization for full authorization, and third is account department. So this is authorization. Your username password belong to which authorization? If you are a student, you are not able to the full access of website, full access of speed, full access of the uh, internet time management. Okay. So third is accounting. Suppose तीसरी बार क्या होगा? If you go back, leave the campus, after some day, some police officer come here and investigation during uh, 10 May to 15 May, Mr. A. Kumar is staying in hostel. Please give the internet data, give the what types of internet he used during this. So this is accounting, your हिसाब किताब, accounting, आपका accounting है. So definitely all are must be ensure कि if you are doing internet any manner, triple A is mandatory. So here in college campus, I give the on behalf of all of you internet. So definitely here one triple A server. This server may be known as other name also, proxy server, firewall, but actually main motto of this server is triple A. Authentication, you are right person. Authorization, what facilities provided to for internet. Third is accounting, which types of your record of internet. दिस इज 90 डेज मिनिमम एज पर रूल. ओके, तो ये मान लो कि जो लोग भी आप इंटरनेट कर रहे हो, इसका हिसाब किताब है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरनेट ना रखा जाए. तो नाउ लिस्टन अगेन हियर. जैसे यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड. जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे. तो इसमें हमें तीनों चीज होगी. ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड. ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 MBPS से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है. ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज ऑथराइजेशन. आपकी कैटेगरी कौन सा. कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ. दिस इज अकाउंट. ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग एडवांस में आए. इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 MBPS का स्पीड देगा. दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है. तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता. तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी. ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में. यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं. जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा. 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया. तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है. उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो. आज के ज़माने में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा. भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन सेम राउटर यूज कर रहे हैं, लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया. तो फिर वाइन कहलाएगा. और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे. रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, रियल वर्ल्ड वी हैव ऑलवेज राउटर्स. एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे LTTC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है. इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी. इसका रियल हम यहाँ देखते हैं. ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया. 100 MBPS का स्पीड यहाँ तक. ऑप्टिकल फाइबर कम फ्रॉम ISP 100 MBPS. Total number of fiber in this cable is 6 fiber, 3 pair. So for the security purpose, for the precautionally, we have at a time 1 pair in active mode, another pair is the ideal mode. In case one pair is the failure, so second pair is working. So definitely if
this pair complete wire is fail, तो completely whole campus internet will be disturbed. फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर एक ट्रांस रिसीव, और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारा राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर है, इनके डिजाइन जो मत जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो 20 वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है, हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं। दिव्या, थर्ड पेयर मतलब इजी स्पेयर, थर्ड पेयर जो है स्पेयर होता है, नॉट इन यूज, ठीक है ना, डमी टाइप का। ओके, इफ एनी केस required urgently it may be used. Okay, I will discuss again, but this is useless, nothing. आप लोगों का request to all of you, please listen very carefully. This video link will be shared in your group. आप सभी लोग, क्योंकि my practical completely depend on this network. ये जो नेटवर्क है इसको पे ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल बना रहे हैं कैंपस का, इसी पे हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे। ये आप लोग प्रैक्टिकली मेरे साथ करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकली ऑल ऑन दिस कैंपस नेटवर्क।
such types of network you can consider for your college, your campus, your hotel, any building. Okay. तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका यही आपका एकमात्र असाइनमेंट है, सिंगल असाइनमेंट है. Please either you type, either write in your hand and share at least next 2 or 3 days. Okay, as soon as possible. It is very good because before going practical session, if you do it, तो it is well for all of you. ये आपने पहले ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं. पैकेट ट्रेसर जैसा कि आप सभी लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो मैं एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर आप लोग ओपन करेंगे और इसको मैं सेव कर लेता हूँ. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर आल्सो सेव दिस बिकॉज डे बाय डे नेक्स्ट 3 or 4 सेशन ऑन दिस कंप्लीट जो लास्ट सेव आपका होगा, जो पिछला सेव किएंगे उसी पे डिपेंड करेगा. ओके, तो नाउ दिस सेव एज आपका जो बैकेट बैच है डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं. 12/07/2021 बैच. ठीक है, I just say the day 1. If you install the first time in your PC and using the first time, open when this packet tracer, so there is some question mark, some caution will be show. Don't bother, just yes and remove. Okay. अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया, अगर इंस्टॉल करते हुए कोई एरर शो करता है या कोई क्वेश्चन शो करता है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि हमने आपको थोड़ा सा पुराना वर्जन जानबूझ के दिया है. क्यों दिया है? वेरी सिंपल मैनर कि गिव द ओल्ड वर्जन बिकॉज इफ़ यू आर लर्न एनीथिंग, तो अगर आपको कार चलानी है, इफ वांट टू ड्राइव कार, बाई स्कूटर, स्कूटी, तो नेवर गो फॉर द न्यूली ब्रांड कार, ऑलवेज ट्राई टू द यूज कार, यूज व्हीकल. ओके, तो जस्ट लाइक दिस एंड इट इज द कंप्लीट पैकेज. ये कंप्लीट पैकेज है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है. जब आप इसको सीख लेंगे, इफ यू आर लर्न, तो सम पीपल आर इन योर बैच दे फॉर द 6 month 3 month in available in this group, so they will go for the next level. I give the separate and new version of this packet tracer. They are able to make uh, complete smart building IoT practical on this project. Okay, so this is a basically project first time use. So just open your packet tracer. So look like this on your screen. First your work is that you go to the file edit option after installing first time, then click on option, go to the preference, and here this option is show device name label by default unchecked. After installation, we open and just go for the file edit option, so you can see here show device name label is unchecked. Okay, so just you check mark it. Here is the first one. Now in the left below side, you can see different types of option is available. This is a router. Just click on router. You can see different version of routers. Okay, 184.1.1.9, all are the router. There is no problem. Like motor bicycle, motorbike. In motorbike, earlier only motorcycle, then become in the 80cc, 100cc, 120cc, now 200, 250cc. So just a modification version of your bike, but all are bike. Purpose of all bike are the same. ये नहीं कि नया बाइक ले लिया तो वो कहीं हाँ वो स्पीड अच्छी हो सकती है, मे बी गुड स्पीड, मे बी गुड पिकअप, इट इज डिफरेंट थिंग, ये एक अलग चीज हो सकती है. बट पर्पज ऑफ ऑल व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. आप कोई भी पर व्हीकल ले लीजिए, सबका उद्देश्य एक ही होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप मूव करते हैं, राइट. ठीक है, बट इन दिस इज द आउटडेटेड बिकॉज दिस ऑल आर आउटडेटेड, दिस नॉट यूज, this not used. Okay, and this is also not used, this is not, but in this simulator you can use no problem. But in the real world, a minimum your router will be starting from 2811. So your first router series is a 2811, is the complete package of initial first level learner.
इन द कंप्लीट इन द टुडे सिनारियो, आज के समय में पहली बार जो काम करना चाहते हैं उनके लिए 2811 इज द सफिशिएंट एंड कंप्लीट। अगर रियल में आप खरीदने जाएंगे तो ये इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपीज के आसपास में। देखने में कैसे होगा? दिस इज अ राउटर, लुक लाइक दिस, दिखने में आपको ऐसा मिलेगा, राइट? ये बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट दिस डिवाइसेज? just click on here 2811, click this router and just click on the router one here. Just like you see the server visit, so suppose this is the ALTTC server router, already see in the video. And what we say in the video, what is said in the video, another router, here is no other option is available due to the simulator, so but we can take 2811 again, and this click again here, this is the ISP PE, either P router, suppose BSNL server, definitely LTTC server, this is a part of the BSNL, part of the government of India, definitely service taken by the BSNL, not any private organization. So definitely this is the router, this is the BSNL ISP, okay, this is another router. And another device connect, from this to connect a switch. So next option is the switch. Here a switch, click on switch, selection of switch, put here. And your campus, you can more than one switch you can connect, another switch also taken here. आप कैंपस के अंदर एक राउटर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्विच लेंगे, ठीक है ना? क्यों एक से ज़्यादा जोड़ना है तो कैसे जोड़ना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेकेंड इज दैट, कुछ कंप्यूटर्स होंगे, यू कैन टेक कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स कनेक्ट बाय द स्विच 0, some computer connect by the switch 1, and in your campus some user may be connected through the Wi-Fi. कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होंगे, राइट? तो यहीं पे आप मूव करेंगे, पहला राउटर, देन स्विच, अब नीचे लिखा हुआ भी आएगा ना, यू मूव योर माउस कर्सर, तो डेफिनेटली व्हाट इज दिस डिवाइसेस नेम इज आल्सो डिस्प्ले हियर. So here is the router, there will be a switch, there will have, there is the wireless device. What is meaning of wireless? This is the Wi-Fi. The first number of wireless you can select here. अदर आप बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर द लर्नर फर्स्ट टाइम, तो पहली बार में क्या करेंगे, पहली तो आप कंप्लीट चीज लेंगे ना, सिंपली पहले जोड़ना सीख जाओ. तो इनिशियली स्टेज यू आर टेक एज पर माई एडवाइस, यू फर्स्ट नंबर ऑफ स्विच, दिस इज द वाईफाई, just put here, okay. You move here, this also save here, because continue in the same project day by day, next 3 or 4 days. Some wireless devices, so here is the computer again, click first computer, laptop, server, already move your mouse, so here specification will be displayed below this block, and move forward. This IP phone, VoIP, and this is a wireless tablet. Just select here. This is a smart devices and mobile phone connect. In the Wi-Fi, there is no security because I directly purchase and put here. So your mobile phone and tablet directly connect to this Wi-Fi. आपने वाईफाई में कोई सिक्योरिटी नहीं लगाया है तो सीधा एक कनेक्ट होगा. सिक्योरिटी अब लगा भी सकते हैं. जस्ट आई क्लिक ऑन दिस वाईफाई, go to the config, and there is a 2 port number 0 and port number 1. So port number 0 basically Wi-Fi port, 1 port is this na. So in this case we go for the port number 1, and if you want to see which name Wi-Fi signal showing these devices, so give the SSID, change the name. सपोज करो हमने यहाँ नाम लिख दिया दिव्या के नाम से दिखे, that is a Divya. Okay, what is the password? Just different types of password option is available. So just I take most popular and traditional password option is a WEP key. Just on click, this is basically 10-digit hexadecimal. When go for Wi-Fi password setup, so option is available in your Wi-Fi.
जब वाईफाई आप सेटअप करेंगे ना तो वहीं पे आपको अवेलेबल मिलेगा ये, ठीक है। तो दिस इज हेक्साडेसिमल, तो A B C D 1 2 3 4 5, so now this is 10 digit, no problem. So now this Wi-Fi, this both devices is disconnected because now this is the password protected. So now again want to connect this tablet to this Wi-Fi. So definitely requirement of the password. So just click on the tablet, go to the config and wireless option. Okay, again repeat. I go to the tablet. By default you are here. Just go to the config, go to the wireless. What is SSID? That is the Divya. What is the WP password? A B C D E 1 2 3 4 5. Just remove. Now after some time, he identified tablet ki okay, right, so this connected. Again go for the same for a smart phone. You like today our smart mobile phone. Config wireless 0 and WP A B C D E 1 2 3 4 5. Just remove. This is also connect now. Waiting for this. Any problem? What problem? Okay, SSID name is not changed. This is a Divya. There is default name, there is no SID is available. Now check. This is a connected. Okay. So how to Wi-Fi connected in the local level? Simply such types of password protect in the your own Wi-Fi devices at your home, no problem. तो ये जो सेटअप है कॉलेज में भी कहीं भी जो पूरा बिल्डिंग है ना, अगर उसको जुड़ना हो तो ये हम लोग पर्टिकुलर उस वाईफाई में बेसिकली जो कॉलेज में उसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट, नॉट वाईफाई, द जनरल नेम इज एक्सेस पॉइंट। तो इस एक्सेस पॉइंट में हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो उनके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये डिवाइसों का सिलेक्शन है, कैसे करना है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। एनीबडी आस्क एनी प्रॉब्लम फॉल्ट, किसी को प्रॉब्लम महसूस हो रही हो कैसे डिवाइस कनेक्ट करना, अब आप पूछिए। अभी हम फिलहाल इसको आपको करना है, डिवाइस सेलेक्ट करना है और इसको सेव करके रखना है। कल हम लोग केबलिंग करेंगे, केबल जोड़ेंगे, ओके, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ टेल मी, आप मैंने हमारे साथ करिए और शुरू के नेक्स्ट फर्स्ट 3 या 4 सेशन आई टेक वेरी स्लो, देन वी गो फॉर वेरी फास्ट। इसमें शुरू का जो चीज़ है वही सीखना है, उसके बाद आप आराम से, मैंने एक बार उंगली पकड़ा दिया, यू आर नाउ एबल टू गोइंग वेरी फास्ट। एनी डिफिकल्टी इफ यू हियर प्लीज टेल मी, कि क्या आपको ये करने में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बताएं और इसको करके रखें। टुडे यू हैव वन असाइनमेंट, आवर सर्वर विजिट, प्लीज लिस्टेन अगेन, ऑलरेडी लिंक शेयर इन योर ग्रुप और उसको हमें भेजेंगे। नंबर 2, इस चीज़ को आप बना के रखेंगे। तुम्हारो कल हम लोग इस पे बात करेंगे। कल हम लोग आपका जो क्लास है 12:30 पे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैटरडे विल बी टुमारो, देयर इज आई थिंक नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चंस नाउ, एनी डिफिकल्टी? यस दिव्या, टेल मी। आयुष, हमेशा आपको बनाना है, इसलिए मैं बार बार इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका पीरियड काफ़ी लंबा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टाइम ओके, देखिए टाइम का तो आपने कर दिया, तो 12:30 टुमारो विल बी अगेन गो फॉर, ठीक है। तो इसको आप बना के रखिए, मैं शुरू में स्लो जरूर चलूँगा कल और परसों, उसके बाद आप दौड़ लगाएंगे क्योंकि ये नहीं हो बाद में, ठीक है ना। असाइनमेंट इज वेरी सिंपल, आई शेयर वन लिंक टूडे सर्वर विजिट इन योर ग्रुप। मैंने एक असाइनमेंट दिया है जो आपका सर्वर विजिट का ग्रुप में, आपको उसको सुनना है कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें बोली हैं। उसमें जैसे आई डिस्कस अबाउट लैन, आई डिस्कस क्या चीज़ है वो पूरा का पूरा वो चीज़ आपको राइटिंग में देना है, मुझे सीधी सी मतलब है। सर्वर विजिट, शेयर एवन वीडियो इन योर ग्रुप, प्लीज सी अगेन, write up all visit conclusion and share with me in the WhatsApp, okay? ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं, नो प्रॉब्लम। अगेन टुमारो विल बी सेशन 12:30। थैंक यू।